पीका का सबसे पहला शिकार होने वाला सबसे बड़ा एंकर काशिफ अब्बासी था। वाई? वो सच बोलना चाह रहा था। जो बड़े से बड़े खिलाड़ी हैं ना, हामिद मीर साहब, डिजिटल पे कुछ और कहते हैं, टीवी पे कुछ और कहते हैं। बिल्कुल है। क्यों? प्रेशर है, देयर इज नो डाउट। कामरान खान टेलीविजन छोड़ के डिजिटल पे क्यों चले गए? इतना बड़ा नाम था, A क्या lot of वजह है कि journalists. जर्नलिस्ट आपके पाकिस्तान में फ्लरिश नहीं करते हैं? बिल्कुल. नहीं कर रहे। देयर इज नो एनवायरनमेंट फॉर देम टू वर्क और अर्न इनफ टू मेक अ हैप्पी लाइफ। Is media actually just in the TV format, in the social media format, or what other areas, what other mediums have there been throughout history on this? This media that we're talking about would change every day. Absolutely. It would turn every day. It would lie to you. It would turn around facts. History is written by the victor, and victor always manipulates the history by saying, मैंने तलवार चलाई और 200 बंदे गिर गए। Azib Khan का केस हुआ था. This is one of the very few cases which I saw from the back. I have not had the same sort of experience as both of you have had. जब ये हुआ था इंसिडेंट, उस टाइम पे दो चीज़ें हुई थी. नंबर वन, the TV channels were not willing to push this narrative on TV. 2012 का एग्जाम्पल दे रही है, मैं कहता हूँ थोड़ा आप रिसेंट में आ जाएं, लोग भूल जाते हैं। मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस है, बहुत सारी बच्चियों की रेप स्टोरीज हैं। आपने रानीपुर की वो वीडियो देखी होगी कि एक बंदा बिस्तर से उठता है, एक छोटी सी बच्ची को उठाता है और छोड़ता है, वो मर जाती है। हमारी सोसाइटी डिटोरिएट कर रही है, रीजन बीइंग कि वी डू नॉट टेल यू द ट्रूथ। हम सच सुनना ही नहीं चाहते, हम सच हजम नहीं कर सकते, हमें सच बोलने की इजाजत नहीं है। रियलिटी बाइट। Is media actually just in the TV format, in the social media format, or what other areas, what other mediums have there been throughout history on this? Thank you so very much, Zainab and Tayyib, for having me on the show. So you start from Quran. So I'll tell you, जब कुरान की आयतें आईं तो वहाँ पे जितने भी शायर होते थे वो एक्टिव हो जाते थे और वो कहते थे कि ये भी शायरी है। जो नबी के मुनकिर थे, जिन्हें हम काफिर कहते हैं, जो इस्लाम के मुनकिर थे, उन सब ने पोइट्री ज़्यादा करना शुरू कर दी। और फिर अल्लाह ने कहा कि अगर तुम ये शायरी समझते हो तो इस तरह तुम भी लिख कर ले आओ। और जितने भी अरब वर्ल्ड के अरबिक स्पीकिंग काइंड्स थी, they couldn't write anything close to the Quran Pak, hence proving it was not shairi. And it was the word of God. Word of God. Yeah. कोई और इंसान वैसा कलाम लिख ना सका. Now coming to your second part of your question, आज कुरान के आपको मालूम है कितने तर्जुमे हैं मार्केट में? जितनी ज़बानें? More than that. More than 200 different translations and tafasir are available in the world. The same way, when you come to media, it has different mediums. Of course, Quran is communicating with the world, everyone in the world. Media is also communicating with everyone in the world. But Quran tells you the truth, the facts. Yeah. And it does not change its word. It will stick to its word. Yeah. But this media that we're talking about would change every day. Absolutely. It would turn every day. It would lie to you. It would turn around facts. History is written by the victor, and victor always manipulates the history by saying, मैंने तलवार चलाई और 200 बंदे गिर गए। You're right about that. Kashif, आप जो है, you work with international media, you work with BBC and the likes of Business Insider. Now, BBC की बात करें, जैनब ने अभी पॉइंट उठाया कि जी आपको पता है 33 टाइम्स उन्होंने इसराइल के पास सिंपैथी दिखाई rather than the Palestinians. आप काम करते हैं, you work as a producer, you fund these shows, fund documentaries. आपको, and I will come back to you on this as well, तला भाई, but आपको कितना प्रेशर होता है, आपको क्या गाइडलाइंस दी जाती है फ्रॉम ए फॉरेन पर्सपेक्टिव कि इस पे काम करना है, इस नैरेटिव से हटना नहीं है? देखें, पहली बात तो ये है कि मैं एक प्रोड्यूसर के फॉर्म में काम कर रहा हूँ जो कि न्यूज़ रिलेटेड है, लेकिन हर किसी की अपनी काम करने का तरीका है, ठीक है। कुछ चीज़ों को जब आपसे डिस्कशन किया जाता है किसी भी चीज़ को, चाहे हम सिर्फ एक चैनल, स्पेसिफिक चैनल की बात नहीं करते, हम ओवरऑल अगर बात करते हैं, तो हर किसी का अपना अपना अलग अलग कंट्री टू कंट्री वेरी करती है ये चीज़, ठीक है। अगर हम जिस भी अगर आप BBC की बात कर लें, आप किसी भी चैनल की बात करते हो, तो वो भी उस कंट्री के हवाले से उसके
गाइडेंस होती हैं. I'm going to pull back to a case that happened in 2012. Shahzeb Khan ka case hua tha. There's one of the very few cases which I saw from the back. I've not had the same sort of experience as both of you have had. But I remember that virtually every single fact of the case was twisted in the media. Nothing that was actually happening was being told. The narrative that was there is completely opposite to what had happened behind the scenes. And people would come and argue with me, oh no, this was reported by this journalist, this was reported by that. जब ये हुआ था इंसिडेंट उस टाइम पे दो चीज़ें हुई थी. नंबर वन, द टीवी चैनल्स वर नॉट विलिंग टू पुश this narrative on TV, okay, and there was a reason because the aggressor, his father was very पैसा बोल रहा powerful. था. पैसा बोल रहा था. And these were students. Shahzeb Khan and his friends, they used to study at this tuition center called Inspire. ये सारे इकट्ठे हो गए थे because they didn't understand कि करे क्या. They use social media, and that the way they turned that entire narrative around by flooding Twitter with hashtag Justice for Shahzeb. 4 दिन में I remember कितनी तेजी से वो बढ़ा था, and that was just 1200 students from one tuition center that decided to do that. So ये कहानियाँ जो थी, I really want to dive deep into misinformation. बहुत सारे लोग कहते हैं फेक न्यूज़ है, डोनाल्ड ट्रंप आके चीख रहा होता है फेक न्यूज़ है हर चीज़ के अंदर. बट क्या ये एक नई कहानी है या फेक न्यूज़ हमेशा चलती हुई आ रही है? President of Pakistan, Asif Ali Zardari, is the latest victim of fake news. Supposedly. जो खबर उनके बारे में सोशल मीडिया पे चली और मेन स्ट्रीम मीडिया पे आई कि ही इज बीइंग रिप्लेस्ड, जिस जर्नलिस्ट ने सोशल मीडिया पे ये खबर दी, इवन दो कि पाकिस्तान में आज पीका एक्ट आ चुका है और एवरी डे देयर अबाउट 25 FIRs ऑन पीका एक्ट. अगर आप एस्टैब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे या मरियम नवाज की बुराई करेंगे तो आप पे FIR तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी डे आपको उठा लिया जाएगा. लेकिन आप प्रेसिडेंट के हवाले से फेक न्यूज लेकर आ रहे हैं. आपके खिलाफ पीका एक्ट सोता रहेगा, आराम करेगा, थक जाता है वो बहुत. Wow. वजह ये है पाकिस्तान में when you come up and talk about journalism nowadays, it doesn't make sense. एग्जाम्पल मैं आपको दूं, हम पहले थोड़ा वक्त पहले भी, आप 2012 का एग्जाम्पल दे रही है, मैं कहता हूँ थोड़ा रिसेंट में आ जाएं, लोग भूल जाते हैं. मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस है, बहुत सारी बच्चियों की रेप स्टोरीज हैं. आपने रानीपुर की वो वीडियो देखी होगी कि एक बंदा बिस्तर से उठता है, एक छोटी सी बच्ची को उठाता है और छोड़ता है, वो मर जाती है. Yes. many दिल खराश हर्टिंग इंसिडेंट्स दैट हैपेंड. हुमैरा आसगर को देख लीजिए, वो एक केस बड़ा Yeah. अफसोसनाक केस है. हमारी सोसाइटी डिटोरिएट कर रही है, रीजन बीइंग कि वी डू नॉट टेल यू द ट्रूथ. हम सच सुनना ही नहीं चाहते, हम सच हजम नहीं कर सकते, हमें सच बोलने की इजाजत नहीं है. रियलिटी बाइट्स. People get so uncomfortable when there's one person who wants to tell the truth. उसी पे सब खा जाते हैं. ये पाकिस्तान का मसला नहीं है. अभी we're seeing the similar issue. We discussed मुझे this in the बताइए last ज़ैनब, नहीं, episode. मुझे ममदानी का ज़ैनब क्या और हुआ आप था? दोनों बताइए, अरशद शरीफ जैसा मर्डर दुनिया में पहले आपने कब सुना था कि कोई जर्नलिस्ट अपने कंट्री से भागा है, किसी और कंट्री गया है और उधर उसको जाके। उस कंट्री की पुलिस ने गोलियां मारी. क्या कशोक जी- ये जमाल कशोक जी या का या है. कशोक जी चले हैं. यस, Acha, but you're right. Talab bhai, I want to actually ask you. You have now been working in media for 18 years, mashallah, and many more years, glorious years to come. Here's the problem. 1980s में आपके पास एक मार्शल लॉ डिक्लेयर्ड था. मीडिया एक चैनल PTV, दूसरा सोर्स जंग, वो भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड था. उसमें हमारा मीडिया फ्लरिश किया in that era of ban. Now, in the present time, मीडिया इज ओन्ड बाय हु? मेरे जैसा गरीब आदमी तो मीडिया नहीं ओन कर सकता ना. अमीर लोग मीडिया ओन करते हैं. पावर हाउसेस, दे बिल्ड द नैरेटिव्स, दे सपोर्ट ईच पार्टी. अमेरिका में भी है, या फॉक्स न्यूज, CNN न्यूज, दो डिफरेंट पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं. अब आपने माशाल्लाह से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 चैनल्स में तो काम किया होगा. मोर देन दैट. मोर देन दैट. देयर यू गो. आपको इन 10 चैनल में 10 डिफरेंट नैरेटिव्स पे बात करनी होगी. एंड ऑफ कोर्स आपने ना चाहते हुए, लाइक आई टोल्ड आज काशिफ भाई अबाउट द बायस, आपका भी एक बायस है, मेरा भी बायस है, पॉलिटिकल बायस, थॉट बायस, व्हाटएवर बायस देयर इज. नाउ डोंट यू फील कन्फ्लिक्टेड कि यार आप जो न्यूज़ दे रहे हैं, आप जो बयान दे रहे हैं, वो आपकी दिल की आवाज़ नहीं है, मगर वो एक टेलीप्रॉम्प्टर पे एक आपको बताया गया है और आपको बोलना पड़ रहा है. It is very sad. It is heartbreaking. It is depressing. It is frustrating. I can't find more words for it. But this situation is not just with me. Yes. जितने भी एंकर्स आप निकाल लेंगे इस वक्त पाकिस्तान की ऑन स्क्रीन पे आ रहे हैं, उन सब की यही सिचुएशन है कि वो अपने दिल की बात स्क्रीन पे नहीं कह सकते. तो सर पीका की बात करें, पीका का सबसे पहला शिकार होने वाला सबसे बड़ा एंकर काशिफ अब्बासी था, जी. राइट? वो पीका से भी पहले शिकार हो गया था. शिकार हो गया. क्या वजह थी?
व्हाई? वो सच बोलना चाह रहा था, बेसिक सिंपल। मगर यार वो तो इतना बड़ा खिलाड़ी था, वो तो इसी तरह से जो आप बात कर रहे हैं उसका चले, दिल टूटा इस हुआ था। खेल के जो बड़े से बड़े खिलाड़ी हैं ना, हामिद मीर साहब, डिजिटल पे कुछ और कहते हैं, टीवी पे कुछ और कहते हैं। बिल्कुल है। क्यों? प्रेशर है, देयर इज नो डाउट। कामरान खान टेलीविजन छोड़ के डिजिटल पे क्यों चले गए? इतना बड़ा नाम था, A क्या lot of वजह है कि journalists. जर्नलिस्ट आपके पाकिस्तान में फ्लरिश नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। देयर इज नो एनवायरनमेंट फॉर देम टू वर्क और अर्न इनफ टू मेक अ हैप्पी लाइफ। यू नो ये जो सैलरीज आपने लेट, point कुछ किया है, कुछ ऐसी चीज अच्छी नहीं है कि आप बोलो कि यार वाह भाई कमाल है। कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे देखिए प्रोविडेंट है ना, ग्रेचुटी है ना, बोनस है ना, जॉब सेफ्टी ना, जॉब सिक्योरिटी। सेठ का जिस दिन मूड खराब हुआ, आप फारे हो गए, आपने एक बंदे का गलत नाम ले लिया, आपको ऑफेयर कर दिया। आप किस एनवायरनमेंट में जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं? देयर इज नो एनवायरनमेंट। Absolutely, and यही exact point I would definitely say I spread across the media industry. अभी recently फवाद खान, आपके ये दो तीन आपके जो मशहूर एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं, वे उनकी बेइज्जती की गई थी इंडिया ने एक्चुअली इनके साथ किया, बिकॉज दे वर वर्किंग इन इंडियन मूवीज। अब उन्होंने ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बीच में उन्होंने ये पूरी एक हरकत की, बट हम जाएं तो किधर जाएं? इधर तो है ही नहीं इंडस्ट्री।